Hello students, as we were making discussion about the chapter number 4, force and pressure, we studied here force is ultimately what? How we define the term force? Force is nothing simply, force is simply push or pull. Force is simply push or pull. Whenever we applied some force on an object or a body, then that body may change in its state, change in its speed, change in its direction. Clear? Due to the application of force. Now here we will make discussion about in detail the effects of force. Effects of force first is here change in the state of motion. Change in the state of motion. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. In the activity number 2 they have given, as you will read, then you will get here, they have given the discussion about whenever we will apply some force on the moving object. ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम बाहर से उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, देन व्हाट विल हैपन? ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमने जिस डायरेक्शन पर वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली द स्पीड ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज. कीप इन माइंड. सेकेंड थिंग, मान लो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. कहां है ऑब्जेक्ट? रेस्ट पर है. ठीक है. जिस डायरेक्शन में हम उसमें फोर्स लगाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में उसमें हम फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव in the direction of applied force. That is change in speed or state. That is change in state from rest to motion due to application of some external force. Speed भी change हो सकती है force से state भी change हो सकती है, and force में also change the direction of motion. How? मान लो object इस direction में move कर रहा है, ठीक है, और यहां पर आके जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया है, आपने इधर से एक इस डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल में एक फोर्स लगा दी. दिस इज द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. आप क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है, आप यहां से यहां पहुंचते ही ऑब्जेक्ट में एक यहां से एक फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट टू मूव इन द अदर डायरेक्शन. इज इट क्लियर? इस एक्टिविटी में भी आपको यही दिया गया है. From the given activity, we will know here with the application of force we can change the speed of an object. With the application of force we can change the state of an object or position of an object. With the application of force we can change the direction of moving object. Clear? We also realize that if the applied force acts on a body along its direction of motion, the speed of body will increase. Definitely whenever we will apply the force on the moving object in the direction of its motion, जिस डायरेक्शन में बॉडी कोई मूव कर रही है, अगर हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाएंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? जो मूविंग बॉडी है उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. सेकंड, if the direction of motion of body is opposite to its direction of motion, direction of force,
द स्पीड विल डिक्रीज। मान लो ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है और दिस इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फोर्स, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, क्या होगा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज इन मोशन। इसका जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? इफ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। डेफिनेटली। मान लो जैसे यहां पर था हमारे पास एग्जांपल, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने यहां से एक फोर्स लगा दी। मान लो ये है F1, दिस वन इज F2। F2 को हम एक पर्टिकुलर एंगल में फोर्स यूज कर रहे हैं। तो बॉडी पहले यहां से आ रही थी, यहां विद एप्लीकेशन ऑफ दिस F2 फोर्स इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। क्लियर? हो सकता है इसकी स्पीड भी कम हो। क्लियर? ओके। Our common experience also tells us that many a time the application means apply, लगाना, application of force does not result in a change in the state of rest or motion of the body. For example, we do not observe any motion when we try to push the heavy stone. हाँ, बात सही है। बहुत सारी ऐसे भी हमने इवेंट्स देखे हैं जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं। इवन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। मान लो आप घर की दीवार को धक्का लगाएंगे, क्या वो घर की दीवार वहां से हट जाएगी? नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या आप मान लो किसी व्हीकल को, आप ट्रक को धक्का लगाएंगे, ठीक है, या ट्रक को अकेले आप ट्रक को खींचना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल? नहीं। या कोई बड़ा पत्थर है, तो ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स। आप पढ़ेंगे आगे, वेट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स। व्हेन मास मल्टीप्लाइड विद ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटी, इट बिकम्स हेयर वेट। तो इसका जो वेट है, वेट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फोर्स। इसका मतलब दैट इज मोर देन दैट ऑफ द फोर्स विच वी आर अप्लाइंग फ्रॉम द आउटर साइड। जो बाहर से फोर्स लगा रहा है उससे ज्यादा वेट है इसका। इज इट क्लियर? ए फोर्स मे नॉट therefore always succeed in bringing a change in the state of motion of object. Sometimes it only tends to do so. हाँ, हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फोर्स लगाई और वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर पा रही है। सेकेंड इज हेयर चेंज इन साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज हेयर विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंज इन size shape of an object. We know that to make a chapati, we first take some हम क्या करते हैं हम जब चपाती बनाते हैं? बताओ जरा, आपने कभी देखा होगा। पहले हम सॉलिड आटा लेते हैं, इतना सा, ठीक है, सॉलिड आटा लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको हल्का सा दबाएंगे, यानी कि हाथ से ही उसको एक छोटी सी शेप दे देंगे एंड अल्टीमेटली, और हम हथेली से उसको बार बार फोर्स करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दोनों हाथ से हम फोर्स लगा रहे हैं। तो पहले तो आटा वो ऐसे था, ठीक है,
उसके बाद क्या बन गया, एक चपाती बन गई हमारे पास पूरी विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मान लो अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे टूथपेस्ट, ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या उसकी शेप शक्ल चेंज होती है, नहीं होती है? होती है। क्लियर। मान लो मेरे पास कोई बैलून है, मैं बैलून को दबा रहा हूं तो क्या होगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, बैलून हमारा क्या होगा, वो दब जाएगा, उसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इन द डेली लाइफ वी हैव ऑब्जर्व सो मेनी एग्जाम्पल्स where we can observe the change in shape or size of an object with the application of force. Clear? Ultimately अगर हम बात करें, ये कंक्लूजन निकलता है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, force may change the direction of moving object, force may bring a change in its size, shape of an object, force may cause two or more or all of these effects एक ही टाइम में। ऐसा भी हो सकता है शेप भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो वी हैव टू कीप ऑल दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस इन आवर माइंड। ओके, थैंक यू।